Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we have to start the new chapter, that is the mathematical reasoning. That means we have the mathematical logic. First of all, we have to know about the history of this mathematical logic. In ancient Greece, a group of traveling teachers called sophists had the reputation of being able to argue for any point. Like this, Laika is my cat, Laika is a mother, therefore Laika is my mother. To help the expose the logical tricks used by the sophist, Aristotle wrote a book titled Refutation of the Sophist, and this book mentions many illogical patterns of the reasoning. That means this Laika is my mother. That means you can say that cat is my mother. That is the illogical pattern of reasoning, and which are quite effective for detecting bad argumentation. And what is the goal of logic? The goal of study of logic is to construct good or sound arguments and to recognize bad or unsound arguments. Thus, we can say that logic is a science of reasoning. Aristotle was one of the earliest writers on the logic. The first, the first one, that is the mathematician George Boole, who applied the mathematical method in the study of logic. And sometimes the study of logic in mathematics is called Boolean logic. ओके जो जॉर्ज बोले था उसने जो अरिस्टोटल की बुक थी और उसको जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो इसीलिए इसको बूलियन लॉजिक भी बोलते हैं. व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक इज द स्टडी ऑफ जनरल पैटर्न्स ऑफ रीजनिंग विदाउट रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट. मीन्स उसका मीनिंग है या नहीं है, एक पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, उस स्टडी को हम स्टडी करेंगे उसकी जनरल पैटर्न्स की. दैट इज द लॉजिक. द स्टडी ऑफ लॉजिक इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ propositions, that means statements. So what is statement? Statement is a sentence which is either true or false but not both simultaneously. बहुत सारे sentences हैं, ठीक है, इंग्लिश में अपने बहुत सारे सेंटेंसेस किए, लेकिन हम उन सेंटेंसेस को कंसीडर करेंगे जो या तो ट्रू हो या हमारे पास फॉल्स हो, दोनों नहीं होने चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल ए ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स. ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती है, दैट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज ए स्टेटमेंट. वेयर इज योर बैग? वेयर इज योर बैग, ये क्वेश्चन है हमारे पास. इस स्टेटमेंट के बारे में आप ट्रू भी नहीं कह सकते, फॉल्स भी नहीं कह सकते, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. मैथमेटिक्स इज फन. अब मैथमेटिक्स इज फन कुछ स्टूडेंट्स के लिए फन है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग है, ठीक है, जिनको अच्छा नहीं लगता ऑटोमेटिकली उनके लिए बोरिंग है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है. इस स्टेटमेंट के बारे में ना तो आप ट्रू कह सकते हो ना फॉल्स कह सकते हो, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. एवरी सेट इज एन इनफाइनाइट सेट. जितने भी सेट हैं, एवरी सेट इज इनफाइनाइट सेट, दैट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. फॉल्स, देयरफॉर इट इज ए स्टेटमेंट. y plus 9 is equal to 7. दिस इज एन इक्वेशन. अब इसमें जो है y के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है. y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, y के बारे में कुछ नहीं है.
ना तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कह सकते हैं ना फॉल्स कह सकते हैं, एंड देयरफॉर it is not a statement. Y plus 9 is equal to 7 is not a statement. Every square is a rectangle. It is the true. Therefore, it is a statement. That means, in this case, second, third, and fifth is not a statement. And now, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम कहते हैं कि स्टेटमेंट नहीं है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो देखिए. नो सेंटेंस कैन बी कॉल्ड ए स्टेटमेंट इफ इट इज एन एक्सप्लेनेशन, इट इज एन ऑर्डर और ए रिक्वेस्ट, इट इज ए क्वेश्चन, इट इन्वॉल्व्स वेरिएबल like variable time such as today, tomorrow, yesterday. It involves variable places such as here, there, everywhere, etc. It involves pronouns such as he, she, they, etc. And now we have to state the truth value of the flowing statement. Truth value, that means if it is true then you can say T. If it is false then you have to write false. Sky is red. It is false. Therefore truth value is F. The square of an even integer is an even integer. Yes, it is true. Its truth value is T. Every hexagon is a polygon. True. Statement 2 is an even number. That is true. Truth value is T. A square has all its sides equal. That is also a true statement. Chandigarh is the capital of Haryana. Its truth value is T. Is it clear? And now we have the types of statement. First one, we have to discuss the simple statement. A statement is called simple if it cannot be broken down into two or more statements. 2 is an even number. A square has all its sides are equal. Chandigarh is the capital of Haryana. Yes, these are the simple statement. इन statements को हम two or more parts में break नहीं कर सकते. Second one is the compound statement. A compound statement is one which is made up of two or more simple statements. For example, 11 is both an odd and a prime number. ठीक है, जो ये हमारे पास स्टेटमेंट है ये टू पार्ट्स में है. द फर्स्ट वन इज 11 इज एन ऑड नंबर एंड सेकेंड वन इज 11 इज ए प्राइम नंबर. ठीक है, यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स टू उसको हम जो है टू और मोर पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. एंड नाउ वी हैव टू क्लासिफाई एज सिंपल और ए कंपाउंड स्टेटमेंट. 2 is both even number and a prime number. Yes, that is a compound statement. 9 is neither an even number nor a prime number. 9 हमारे पास ना तो even number है और ना ही हमारे पास क्या है prime number है. ठीक है, it is made up of two statements, two simple statements. Therefore, it is a compound statement. Ram and Rahim are friends. अब इसके बारे में बताइए कि ये हमारे पास कंपाउंड है या सिंपल है. यस, राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स. दैट इज ए सिंपल स्टेटमेंट. हम ये नहीं कह सकते राम आर फ्रेंड, रहीम आर फ्रेंड, यानी कि इसको हम टू पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स इज द सिंपल स्टेटमेंट. एंड नाउ Chandigarh is the capital of Haryana and UP. Yes. दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा और सेकंड चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ यूपी. अब आप ये सोच रहे हैं चंडीगढ़ तो कैपिटल नहीं होती यूपी की. तो स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया था कि या तो वो ट्रू होनी चाहिए या हमारे पास फॉल्स होनी चाहिए. ठीक है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा. दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट. And Chandigarh is the capital of UP. That is not a true. Therefore, it is a false statement.
ठीक है। नेक्स्ट, द सन इज ए स्टार। यस, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। द अर्थ revolves around the sun. Yes, it is true. Therefore, it is a simple statement. And now, components of a compound statement. Each statement of a compound statement is called component of a statement. For example, Chennai is in India and is the capital of Tamil Nadu. अब इसके two parts कौन कौन से हैं? The first one is Chennai is in India, and second one is Chennai is the capital of Tamil Nadu. ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट किससे किया हुआ है? एंड से किया। तो इसके टू कंपोनेंट्स, यानी कि जब भी कोई स्टेटमेंट होती है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम पी लिख रहे हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट चेन्नई इज इन इंडिया, ठीक है। और क्यू लिख रहे हैं, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट। एंड नाउ वी हैव द बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स, यानी कि कौन से कनेक्टर्स के साथ ये यूज लॉजिकली कनेक्टेड है। देर आर मैनी वेज ऑफ कंबाइनिंग सिंपल स्टेटमेंट्स टू फॉर्म द न्यू स्टेटमेंट्स। अब ये जो कनेक्टिव्स है हमारे पास, जैसे हम मैथ्स के अंदर टर्म्स को कनेक्ट करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन लॉजिकली रीजनिंग के अंदर हमारे पास कनेक्टिव्स अलग तरह के हैं। The word which combine or change simple statement to form a new statements or compound statements are called connectives। यानी कि वो वर्ड्स है यहाँ पर जिससे हम कंबाइन करते हैं या सिंपल स्टेटमेंट को न्यू स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं या कंपाउंड स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज द कंजक्शन, the basic connective conjunction, and that correspond to the English word and. Second is the disjunction, that is corresponding to the word or. And third one is the negation, that correspond to the word not. इसके अलावा भी हमारे पास हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंजक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन। वी यूज द सिंबल, यानी कि कंजक्शन अगर हमने यूज करना है तो उसके लिए सिंबल हमारे पास उल्टा वी है। जैसे इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू वी यू होता है ना, वैसे हमारे पास कंजक्शन जो एंड के लिए, दोनों के लिए है, उसके लिए उल्टा वी है, ठीक है। और डिसजंक्शन के लिए हमारे पास वी है। और नेगेशन के लिए ये जो सिमिलर का साइन होता था हमारे पास, सिमिलर ट्रायंगल्स किए थे ना, तो उसके लिए आपने ये सिंबल यूज किया था, तो ये सिंबल हमारे पास यूज होगा नेगेशन के लिए, ठीक है। एंड नाउ वी हैव द नेगेशन। नेगेशन क्या है? Denial of a statement is called the negation of the statement. That means इसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं नॉट, जहाँ पर उसका प्रॉपर प्लेस है वहां पर नॉट यूज कर देते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी प्रीफिक्स कर देते हैं बाय द स्टेटमेंट विथ इट इज नॉट द केस और इट इज फॉल्स दैट, ठीक है। या तो हम नॉट लगाएंगे या हम लिखेंगे इट इज नॉट द केस और इट इज फॉल्स दैट। नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म इज रिटन एज negation of P. This symbol we have to use. Negation is called connectives, although it does not combine two or more statements. अब ये टू और मोर स्टेटमेंट को कंबाइन नहीं करता, लेकिन फिर भी ये कनेक्टिव है, बिकॉज इट मॉडिफाइज द स्टेटमेंट, बिकॉज इट मॉडिफाइज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। राइट द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट।
everyone who lives in India is an Indian. We have to write the negation. अब इसमें जो P है, P क्या है? सिंपल स्टेटमेंट है, everyone who lives in India is an Indian. And the negation of this statement is given by it is false that everyone who lives in India is an Indian. ठीक है, फर्स्ट वे से हमने लिख दिया इट इज फॉल्स दैट एवरीवन हु लिव्स इन इंडिया इज एन इंडियन. हम ये भी कह सकते हैं इट इज नॉट द केस दैट एवरीवन हु लिव्स इन इंडिया इज एन इंडियन. और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एवरीवन हु लिव्स इन इंडिया इज नॉट एन इंडियन, यानी कि नॉट को हमने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया. That is the negation of a statement, that means the denial of a statement. Is it clear? And now we have to the truth table for the negation of a statement. यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू, नेगेशन की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, जो सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू है, नेगेशन आ गया, नॉट आ गया, तो उसका अपोजिट हो जाएगा. और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा. इफ P negation of P has truth value T whenever P has truth value F and negation of P has truth value F whenever P has the truth value T. यानी कि P और negation of P, अगर हम T ले रहे हैं, truth value T है, तो negation की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स. अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी. Is it clear? And now we have conjunction and disjunction. Conjunction and disjunction are the connectors. Conjunction, that means that two simple statements P and Q are connected by the word and the resulting statement is P and Q is called the conjunction of P and Q, and it is symbolical form. It is written as P and Q. This is the symbol for conjunction. उल्टा V symbol हमारे पास है conjunction के लिए. ठीक है. And now disjunction. If two simple statements P and Q are connected by the word or, then the resulting statement is P or Q is called injection. और मैथमेटिकल फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं P V Q. V सिंबल हमारे पास किसके लिए है? डिसजंक्शन के लिए. ओके. एंड नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स एंड द कनेक्टिव in the flowing compound statements. It is raining and sun is shining. 2 is a positive number or a negative number. It is raining and the sun is shining. कनेक्टर्स क्या है इसके अंदर? एंड. और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? P, it is raining, एक सिंपल पार्ट. और एंड के बाद वाला जो है सेंटेंस, that is the sun is shining. That is the components. One is P, it is raining. Second is the sun is shining. And the connectives, connector क्या है इसके अंदर? That is and. Is it clear? Now you have to see the second. 2 is a positive number or a negative number. अब इसमें इसके जो components हैं, the first component is 2 is a positive number और second component 2 is a negative number और जो connective है that is the or. बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर ना. Now we have the truth value of disjunction. यहाँ पर disjunction, okay, disjunction is this statement P or Q has the truth value F whenever P and Q have both have the truth value F. यानी कि अगर P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो P और Q की जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी. अगर
P फॉल्स है, Q फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो इसकी P और Q की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी। और P और Q में ट्रू कब होगा? जब उनमें एक भी ट्रू हो। अगर P ट्रू है या Q ट्रू है या दोनों ट्रू हैं, तो हमारे पास ट्रुथ वैल्यू उसकी ट्रू होगी। यू हैव टू सी दिस टेबल। दिस इज P स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, Q सेकेंड वन स्टेटमेंट, P और Q। अगर इसके टेबल बनाने के लिए बहुत इजी वे है, पहले दो, क्योंकि हमने टू स्टेटमेंट्स के लिए लिखना है, पहले दो टी लिख लीजिए, फिर दो फॉल्स लिख लीजिए, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अंदर। और सेकंड कॉलम में फर्स्ट टीएफ टीएफ, फर्स्ट टीएफ टीएफ, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। इसमें हमारे पास क्या है कि पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। अगर उन दोनों में से एक भी ट्रू है, टी फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, देन वी हैव ट्रुथ वैल्यू टी। And first is false but second is true, its truth value is t, ठीक है। और इसमें फॉल्स कब होता है? जब दोनों फॉल्स हो। F P is false, Q is false, then its truth value is false. Is it clear? And now truth value of conjunction. P and Q has the truth value t if both the components P and Q have the truth value t, otherwise false. कंजक्शन के अंदर हमारे पास अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रुथ वैल्यू टी होगी, अदरवाइज फॉल्स है। यानी कि अगर उनमें से एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स है, फॉल्स आएगा, एक फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स होगा। एंड नाउ यू हैव टू सी दिस ट्रुथ वैल्यूज, ट्रुथ टेबल। वैसे ही सेम P फर्स्ट कॉलम में 2T 2F, देन Q के अंदर TF TF। अब इसमें देखिए T एंड T बोथ आर ट्रू, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज T। वन इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, false true, it is false, and both are false, it is false. Is it clear? And now we have to write the truth value of each of the following statement. 9 is an even integer or 9 plus 1 is even. अब इसमें क्या है? 9 is an even integer, that is the false statement, and 9 plus 1 is even, that is true. और बीच में कनेक्टर्स क्या है? और के लिए क्या बताया था कि अगर एक ट्रू एक फॉल्स हो तो हमारे पास क्या होता है? ट्रू। इट मीन्स फर्स्ट इज द ट्रू। एंड नाउ सेकेंड वन, 2 plus 4 is equal to 6, this is true, and 2 plus 4 is equal to 7, that is false. फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, तो ये हमारे पास क्या होगा? इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू। एंड नाउ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब बीच में क्या है? कनेक्टर्स क्या है? एंड। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, दैट इज ट्रू। दोनों ही ट्रू हैं, दोनों ट्रू है, तो यहाँ पर एंड कनेक्टर्स के लिए हमारे पास ट्रू आ जाएगा। एंड नाउ एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर and every square is a rectangle. Every rectangle is a square, that is the false statement. And but every square is a rectangle, that is a true statement. यानी कि फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, एंड देयरफॉर और कनेक्टर्स क्या है? एंड। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। द सन इज ए स्टार और सन इज ए प्लेनेट। सन क्या है? स्टार है, ये ट्रू है। सन इज ए प्लेनेट, ये फॉल्स है। वन इज ट्रू, वन इज फॉल्स, एंड देयरफॉर कनेक्टर और है, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी। इज इट क्लियर? यानी कि फोर्थ के अंदर क्या हो जाएगा? फॉल्स, ओके। और फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ हमारे पास क्या है? ट्रुथ वैल्यू टी। इज इट क्लियर? और इसके अंदर भी क्या होगा? थर्ड के अंदर भी दोनों ट्रू हैं, तो ये स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, नाउ वी हैव द नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट।
कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे होता है। नेगेशन ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट बिल्कुल सेम उसी की तरह से है जैसे आप लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ किया था। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता था कि कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता था और कंप्लीमेंट दोनों के साथ लग जाता था। बिल्कुल सेम यहाँ पर, अगर यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर दोनों के साथ कंप्लीमेंट लग जाएगा और बीच में ये जो सिंबल एंड का सिंबल है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। और डी मॉर्गन्स लॉ में दूसरा था यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता था और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट होता था। बिल्कुल सेम यहाँ पर नेगेशन ऑफ कंजक्शन और डिसजंक्शन के लिए है। अब इसमें यह है कि नेगेशन ऑफ ए कंजक्शन वुड मीन द नेगेशन ऑफ at least one of the two component statements. That means we have negation of P and Q. ठीक है, नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, यानी कि ये जो एंड है वो हमारे पास और में कन्वर्ट हो गया है। और सेम इसी तरह से डिसजंक्शन के लिए आइदर और के लिए हमारे पास ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हियर वी हैव नेगेशन ऑफ P और Q is equal to negation of P and negation of Q। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये वाला पॉइंट याद करना है, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ में था वैसे सेम यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड नाउ व्हाट इज द नेगेशन ऑफ ए नेगेशन? जैसे आप लोगों ने किया था कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट ए इटसेल्फ, बिल्कुल सेम ही हमारे पास नेगेशन ऑफ ए नेगेशन हमारे पास उसी स्टेटमेंट के इक्वल आ जाएगा। और जो नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इज नॉट ए कनेक्टिव बट ए मॉडिफायर। ठीक है, इट ओनली मॉडिफाइज द गिवन स्टेटमेंट एंड अप्लाइज ओनली टू ए single simple statement. That means negation of a statement is the statement itself। यानी कि पहले हमने नेगेशन का यूज किया, फिर दोबारा से उसका नेगेशन यूज करेंगे तो हमारे पास P के इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंड नाउ वी हैव द क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स आर द फ्रेजेस लाइक देयर एग्जिस्ट एंड फॉर एवरी, यानी कि काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके अंदर ये टर्म्स यूज होती हैं, देयर एग्जिस्ट, फॉर एवरी, दीज आर कॉल्ड द क्वांटिफायर्स। अब इसमें हमारे पास है ये स्टेटमेंट, देखिए, फॉर एवरी प्राइम नंबर x, x इज एन इरेशनल नंबर। फॉर एवरी आ गया, दैट इज द क्वांटिफायर। देयर एग्जिस्ट आ जाए किसी स्टेटमेंट में तो वो हमारे पास क्या है, quantifier। There exists a triangle whose all sides are equal, that is also a quantifiers। And now we have to identify the quantifier and write the negation of the following statements। There exists a number which is equal to its square। There exists, इसमें क्या है, quantifier। ठीक है, और second one is for all even integers x, x square is also even। There exists a number which is a multiple of 3 and 9। अब इसके सॉल्यूशंस में देखिए, फर्स्ट में क्या है, there exists क्वांटिफायर है और इसका नेगेशन क्या होगा, there does not exist a number which is equal to its square। सेकेंड है for all even integers x, x square is also even। इसमें for all क्या है, for all क्वांटिफायर है और इसका नेगेशन क्या होगा, there exists an even number x such that x square is not even। एंड यहाँ पे जो है ना क्वांटिफायर्स को, अगर हमारे पास for all गिवन है तो उसके लिए हम there exist यूज करेंगे, और there exist गिवन है तो वहाँ पे there does not exist भी आ सकता है, for all भी आ सकता है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट में है ना, देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड 9, तो इसका नेगेशन क्या होगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड 9। इज इट क्लियर? यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, देयर डज नॉट एग्जिस्ट a number which is a multiple of 6 and 9. I hope you understand all the terms of mathematical reasoning. Thanks and have a nice day. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर लीजिए. Okay, and take care and do your work properly. Otherwise, you will get a less marks in assessment. Okay.